All right. Now this lecture is being recorded, and I'll be sending you the recording link also, students. I'll be sending you the link also so that you can go through these questions once again on our YouTube channel, Cash 25 Science Academy के YouTube चैनल पे आपको ये सारा लेक्चर मिल जाएगा. आप ये सारे क्वेश्चंस वापस से गो थ्रू कर सकते हो. एसएससी ने जो सीईटी अनाउंस किया है, विच विल गिव यू प्रेफरेंसेस, है ना, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इफ यू हैव गिवन इन सीईटी. एसएससी सीईटी जो अनाउंस किया है एसएससी ने. So in order to excel in that CET, in order to perform well in that CET, we have started this sessions for you, these sessions for you, wherein you will be taking through various concepts of physics, chemistry, maths, biology and other subjects also. Social sciences वो सबके ऊपर आपको MCQs आने वाले हैं. आज का जो सेशन है ये हमारा सेशन है केमिस्ट्री के ऊपर, उसमें भी कार्बन कंपाउंड्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. सो कार्बन कंपाउंड्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी डैश. आई हैव पिक्ड अप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. महाराष्ट्र जो टेक्स्ट बुक दिया है वहीं से मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं और वहीं से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो आपको कहीं से बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक. आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इजी लेवल है, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि 60 to 70% क्वेश्चंस या मे बी 80% क्वेश्चंस इसी लेवल के आपको आने वाले हैं. सो ऑलरेडी आपने रिप्लाई कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. आंसर इज ए स्टूडेंट्स, लोअर देन 300 डिग्रीज. इससे भी बहुत कम कम वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स. इफ यू गो ऑन टू योर टेक्स्ट बुक आपको इससे भी कम कम वैल्यूज दिखेंगे, बट दिस इज द हायर लिमिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ethane has how many CH bonds? Ethane has how many CH bonds? 6. Yes. Okay, 6. Anybody else? Anybody else, students? Anybody else? 4. Ethane has how many CH bonds? 4, says 6. Aman. Well done, Aman. Okay, 6. Another answer from Aparna. She says 6. Who else? Who else would like to go ahead? 4 and 6 पे ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं. 4. Yes, Nitin Dubey also says 4. So दो students ने 4 बोला, दो ने 6 Six. बोला. Okay, 4. 4 Khushi also says 4. Sohail says 6 again. Khushi also says 4. What about other students? Now let us go into the concepts. Concept पे चले जाते हैं थोड़ा सा, है ना. Let us study कि ये क्या होगा exactly, students. Exactly क्या होने वाला है. So when I say ethane, if you look over here, students, अपन किसकी बात कर रहे हैं? ethane की बात कर रहे हैं. So पहले ethane का structural formula बना लें हम. So 1 and 2, correct students? है ना. कितने कितने हैं अपने पास? Just a second. Yes, चलो. So ये रहा ethane अपना, है ना. इथेन में कितने कार्बन हैं? 1 carbon and 2 carbons. There are 2 carbons over here in ethane, and to complete the structural formula, I will have to draw the bonds also. मुझे bonds भी draw करने पड़ेंगे. So ये bonds मैंने कहाँ लगा दिए students? 1 2 3 4 5 6. These are my bonds. Okay students, ये मेरे bonds हैं. Just a second. Just a second, students. Okay, I will have to mute the audio also. ठीक है, and we can go into the chat box, students. अपन chat box में जाके इसको देखेंगे. Reason is, I'm very sorry, but मुझे okay. ये देखो, चाह के भी अननेसेसरीली कुछ लोग तो आ ही जाते हैं मीटिंग में. हम उनका कुछ नहीं कर सकते. What we can only do is we can yes, very good. Now we are okay with this. No, reduced portion will not come, Merlin. Reduced portion will not come. Okay. Chalo students, let's go back to the PPT. Okay. I'm very sorry, just because of few students, I'll have to lock the audio system, students. So आप chat box में मुझे message कर सकते हो, but you will not be able to speak on audio. ठीक है? Okay. So ethane students, ethane का आंसर क्या है? ethane का आंसर है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने टिक कर दिया था, तो आपको दिख जाता होगा, आंसर दिख गया होगा. Now answer is students, ethane you have to draw
2 carbons. Okay, 2 carbons आपने draw कर लिया, and then you will have to draw the other bonds to complete the tetravalency. Complete the tetravalency. Okay, so what you can do is, जब मैं recording upload कर दूंगा, I will send you the video link, students. You can go on that video link and you can again आप आपस से वीडियो प्ले करके पॉज कर सकते हो क्वेश्चन के पहले, एंड यू कैन जज योर आंसर्स. ठीक है, आप अपने आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो. कैन गो थ्रू द आंसर की आल्सो. ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव 6 CH bonds over here, students. कितने bonds हैं टोटल? 6 हैं, है ना. ये रहा 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, 5 and 6. So I have 6 bonds, and therefore, students, this should be my answer. D should be my answer. In this case, D should be my answer. All right, so I'll go ahead with D, students. All right, next question. Characteristic due to which large number of carbon compounds are possible is, which of these characteristics are responsible for large number of compounds, carbon compounds? Large number of carbon compounds, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से रहते हैं? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से रहते हैं? चलो फटाफट से give me your answers in the chat box, students. Send me your answers in the chat box. Send me your answers in the chat box. Question number 1, characteristic due to which large number of carbon compounds are possible is valency है, isomerism है, boiling point है, और electronegativity. Electronegativity. Okay, so answer is isomerism, students. Answer is isomerism. Due to isomerism, different forms of carbon compounds we can get. Different forms of carbon compounds. For example, if I take n-pentane, straight chain है ना. ये देखो एग्जांपल लेकर आपको दिखा दूं. ये देखो स्टूडेंट्स, अगर आप पेंटेन की बात करते हो, एग्जांपल में ले लेते हैं. चलो, so CH3, CH2, CH2, then CH2 and then CH3. इसके आइसोमर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? ये तो एक हो गया एन पेंटेन. एन पेंटेन का आइसोमर कौन से हैं? आइसोपेंटेन. चेक करो स्टूडेंट्स, आइसोपेंटेन. ये देखो, this is one of the isomers, correct? This is one of the isomers. Next, if I have to draw another isomer for pentane, this is what I can draw, students. Okay, CH3, CH3. ये तो बहुत सिंपल वाले मैंने ड्रॉ कर दिए कॉमन नेमिंग के हिसाब से. आई हैव ड्रॉन एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन. एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन मैंने ड्रॉ किया. ओके स्टूडेंट्स, कौन सा वाला एन है? ब्लैक वाला एन पेंटेन है. ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लू वाला कौन सा है? आइसोपेंटेन है. ओके, एंड रेड वाला कौन सा है? नियोपेंटेन है. और भी बहुत सारे आ सकते हैं. कैसे आ सकते हैं स्टूडेंट्स? अब इनमें पेंटेन में नहीं आ पाएगा, बट ये ट्रिक बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स में आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, पेंटेन में आई विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस. इफ इन केस आई शिफ्ट दिस ओवर हियर, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग. ओके स्टूडेंट्स, आयोपैक सेम आ जाएगा, देयरफॉर इसको अलग कंपाउंड में नहीं मानूंगा. हेंस आंसर इज आइसोमेरिज्म. ओके स्टूडेंट्स, चलो आई विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Smallest hydrocarbon is, smallest hydrocarbon is. Now tell me students, if I go ahead with CO2, कितने लोग CO2 बोल रहे हैं? अगर आपने CO2 बोला है smallest hydrocarbon, so देखो तो students, बहुत सिंपल सी बात है. अगर आपने CO2 बोला है तो आपका बेसिक्स रॉन्ग है. अगर आपने डाई हाइड्रोजन बोला है तो भी आपका बेसिक्स रॉन्ग है. बट आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू हैव नॉट इवन टच्ड दीज ऑप्शंस. आप सब ने, मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव गिवन मी करेक्ट आंसर्स. यू कैन लीव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Right now I'm sharing the screen, so I won't be able to see your chat box. Okay, अब इसका आंसर कैसे अपन पता लगाएंगे? हाइड्रोकार्बन क्या होता है स्टूडेंट्स? When I talk about hydrocarbon, हाइड्रो एंड कार्बन. ठीक है, हाइड्रो एंड कार्बन. So it has two parts. हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन्स प्लस कार्बन से बनते हैं. हाइड्रोजन्स प्लस कार्बन से बनते हैं. करेक्ट है स्टूडेंट्स? राइट है, हाइड्रोजन्स प्लस कार्बन से बनते हैं. करेक्ट. सो इन दोनों कंपाउंड से बनना है, मतलब मेरे पास एक कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन, एंड बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी एटलीस्ट 4 हाइड्रोजन्स तो होना ही पड़ेगा. करेक्ट है स्टूडेंट्स? सो 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स. टेट्रावेलेंसी मतलब याद आ रहा है आपको? Carbon can form 4 bonds, 1 2 3 4, because of 4 valence electrons. So therefore the minimum, the smallest, the most basic hydrocarbon has to be मीथेन. उसके ऊपर है इथेन. डाई हाइड्रोजन नहीं आ सकता क्योंकि इट वुड बी H2. खाली हाइड्रोजन है, कार्बन तो है ही नहीं उसमें. एंड CO2 नहीं आ सकता बिकॉज इसमें हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट्स, ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन. वी आर स्पीकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स. ऑलराइट, so in this case students, my answer would be methane.
Okay, let us go to the next question. You can pause the video. You can pause the video. जब ये वीडियो सेम चला जाएगा यूट्यूब पे, आप पॉज करके आप क्वेश्चन दे सकते हो एंड देन उसका आंसर जज करिए, ठीक है? सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पेनिसिलिन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पेनिसिलिन इज. नाउ ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं स्टूडेंट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द टेबल्स एंड द वैल्यूज व्हिच हैव बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है? उन सारे वैल्यूज को ध्यान से देखना, टेबल को ध्यान से देखना. आई एम वेरी श्योर 80% of you won't be having the answer for this question. If you think you know the answer, go through the options again. I have created confusing options for you. So maybe confusing options की वजह से आपका wrong हो जाए, mistake हो जाए. तो ध्यान से you have to look into the molecular formula. Do not get confused and select the correct option, students. Penicillin, this is factual question, ठीक है? आपको सीधा सीधा टेबल में दिया गया है एंड टेबल से सिलेक्ट करके आपको आंसर इसके निकाल लेने हैं. If you have read your textbook nicely, you'll be getting this answer, and the answer for this is D, option D. Okay, students. बाकी मैंने नाइट्रोजन का वैल्यू, नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी मैंने चेंज किया है. कार्बन काउंट आई हैव केप्ट कांस्टेंट, सो दैट आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी, बाकी ऑप्शंस को भी, बाकी जो एग्जांपल्स उनको भी ट्रीट करना है और इस आइडिया से आपको पढ़ाई करनी है कि यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? I'll go to the next question, students. CHO represents which functional group? Okay, यहाँ पे इस गलती से आ गया है. CHO is represent नहीं आएगा. CHO represents which functional group? है ना? So इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप CHO represent करता है? अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, जो ऑप्शन नंबर 1 है मेरा, if I speak about alcohol, students, so alcohol कैसा होता है? OH, ये सबको पता है. But only it is considered alcohol only if it is bound to carbon. अगर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तभी इसको मैं अल्कोहल मानूंगा, स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस कैन नॉट बी अल्कोहल बिकॉज इट इज CHO, स्टूडेंट्स. इट इज नॉट COH. रिमेंबर, इट इज नॉट COH. और आपको टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली आपको मेंशन किया गया है CHO क्या है. वेरी क्लियरली दे हैव मेंशन्ड. ओके, नेक्स्ट. सो अल्कोहल तो नहीं हो सकता. ओके, दिस कैन नॉट बी द आंसर. सेकेंडरी अल्कोहल की बात ही नहीं उठता. व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल, स्टूडेंट्स? इफ आई हैव अ कार्बन which is attached to two carbons directly, ठीक है? अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, सो ये जो कार्बन है मेरा सेंटर में, दिस इज माय सेकेंडरी कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, ये है सेकेंडरी कार्बन. क्यों? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू टू कार्बन्स डायरेक्टली. सो ऐसे कार्बन पे अगर आपका OH ग्रुप होता तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल. ओके, एंड आपको SSC लेवल पे कितने टीचर्स ने ये समझाया है, आई डोंट नो. SSC में ये है भी नहीं, but yes, while you do IUPAC naming and common naming, some teachers do teach you nature of carbons. So उसके हिसाब से सेकेंडरी अल्कोहल मैंने ऑप्शन रखा था, but again secondary alcohol cannot be the answer because I will have to have OH. OH तो मुझे रहना ही पड़ेगा. CHO तो उल्टी बात हो गई है ना, OH दिखना चाहिए मुझे. If I go into aldehyde, students, yes, aldehyde का फंक्शन अगर मैं याद करूं तो कैसा दिखता है? CH डबल बॉन्ड O एंड डैश. चेक करो स्टूडेंट्स, सब कुछ सही निकल रहा है and therefore aldehyde is the option. If you talk about ketone, सर कीटोन हो सकता है क्या? कीटोन नहीं हो सकता. Why, students? Because कीटोन फंक्शन ग्रुप कैसा दिखता है? C डबल बॉन्ड O डैश एंड डैश. इस तरह से दिखता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप. Okay, students, so it cannot be ketone. This cannot be your answer. So your answer has to be C. Okay, students, answer क्या हो सकता है आपका? C will be your answer. ठीक है? Let me quickly go on to the next question. Next member of homologous series for butanol is. Next member for homologous series of homologous series for butanol is. So butanol मतलब क्या, students? How many carbons? When I draw butanol, students, CH3, CH2, then CH2, then CH2, and then I have OH. Okay, CH2, 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 OH. So ये रहा मेरा butanol, students. Butanol का next homologous series मतलब क्या? You just have to add CH2, 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 है ना? CH2 ऐड करते जाना है आपको. So अगर मैंने यहाँ पे एक CH2 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बोला है, ब्रैकेट में हायर भी आपको इंडिकेट किया है. सो दैट मींस हायर मॉलिक्यूलर वेट. यू विल हैव टू ऐड वन कार्बन. इमीडिएट एडजेसेंट ग्रुप आपको पूछा गया है. सो इट कैन नॉट बी प्रोपेनॉल बिकॉज प्रोपेनॉल तो आप पीछे की तरफ जा रहे हो, वो आपको अलाउड नहीं है. हेक्सेनॉल कैन नॉट बी द मोस्ट इमीडिएट वन. So answer has to be pentanol. It cannot be BNC also. ठीक है?
सो आपका इसके लिए आंसर बनता है, ये देखो स्टूडेंट्स, आपका आंसर बन गया पेंटेनॉल। दैट इज योर आंसर। आई होप आप सबके सब चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट्स मुझे, ठीक है? कीप ऑन रिप्लाइंग मी इन द चैट बॉक्स। आफ्टर सॉल्विंग वी विल कम टू द चैट बॉक्स आंसर्स आल्सो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स कीप ऑन राइटिंग योर डाउट स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आपका डाउट उस पर लिख दो, एंड जैसे ही मैं सॉल्विंग खत्म करूंगा आई विल कम टू योर डाउट स्टूडेंट्स। Okay, I'm so sorry I'm not allowing you on audio. The reason is there are certain students जो unnecessarily screen पे लिख रहे हैं, जो unnecessarily I'm sure audio पे भी आ जाएंगे, and unnecessarily they'll start speaking up, and I don't want that because I can see potentially many students over here who want to learn, who want to take advantage of these sessions. So I'm really sorry, there are few limitations which I can have or which I will have to have over here. You can keep on taking screenshots. Okay students, आप अपने डाउट्स मुझे सुलोचना मैम, वंदना मैम, प्रीति मैम, ज्योति मैम सबके थ्रू भेज सकते हो, जिन्होंने भी आपको ये लिंक भेजा है लेक्चर का उनके थ्रू, या आप अपने कोर्सेज फाउंडेशन ग्रुप में आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। आई विल एड्रेस योर डाउट्स, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है? अगर आपको कोई और भी एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उन एमसीक्यूज के आपको आंसर्स चाहिए तो यू कैन कंसल्ट अस, आई विल गिव यू द आंसर्स, ठीक है स्टूडेंट्स? वी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और आज के अभी की ये जो एमसीक्यूज हैं इनमें कोई आपको डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, हम थोड़ी देर में आएंगे चैट बॉक्स में डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट इज अ डैश प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट इज अ डैश प्रॉपर्टी। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आपको पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें, वेट हो गया, ये सारी चीजें, these are all physical properties. Okay, these are all physical properties. जब आपको मैं पूछूं केमिकल प्रॉपर्टीज तो आप कौन सी बातें करोगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, कंबशन, ये जो रिएक्शंस होते हैं जहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आर यू क्लियर? सो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है, टेक्स्ट बुक का ये स्टेटमेंट मैंने सीधा पिक किया आपके टेक्स्ट बुक से। So this is physical property students. Boiling point is a physical property. I hope all of you have got this correct. बहुत ही simple questions हैं। चलो let's go to next students. Combustion of ethanol gives you. I assure you इसमें आपका mistake हो जाएगा। इस question में आपका confirm mistake होगा। मैं आपको थोड़ी देर में उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों आपको मिस्टेक होगा। आधे लोग तो ऑप्शंस देख के ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या है, ठीक है? सो आपको ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? कंबशन ऑफ इथेनॉल, कंबशन रिएक्शन याद करो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है विथ रिएक्शन। स्टूडेंट्स रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? जो आपको रिएक्शंस दिए गए हैं, आई विल गिव यू गारंटी स्टूडेंट्स, ये गारंटी है पूरी की पूरी कि आपको जो भी एग्जांपल्स आएंगे टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, जो भी रिएक्शंस पूछे जाएंगे टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शंस सॉल्व करके दिए गए हैं उन्हीं रिएक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो डू नॉट वरी, आपको वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? देयर इज वेरी लेस चांस कि वो लोग जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना वहां से क्वेश्चंस उठाए, उसका भी ज्यादा चांसेस नहीं है। जो उन्होंने सॉल्व किया एग्जांपल्स उन्हीं पे से पिक करते हैं। सो जो सॉल्यूशन पार्ट है, जो सॉल्विंग पार्ट है, कोई आपको अगर सम सॉल्व करके दिया गया है टेक्स्ट बुक में तो उस पर ज्यादा ध्यान देना स्टूडेंट्स, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर यहाँ वहां चेंज करके वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, यूनिट चेंज कर देंगे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सो ये जो मैंने लाइन लिया है ये एज इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैंने लिया है स्टूडेंट्स। इट इज व्हाट? कंबशन ऑफ इथेनॉल। सो इथेनॉल का कंबशन जब करेंगे तो क्या क्या मिलता है? सो हमको मिलता है CO2, हमको मिलता है H2O, हमको मिलता है लाइट, हमको मिलता है एनर्जी। सो देयरफॉर ऑप्शन ए तो इनकम्प्लीट हो गया, ऑप्शन बी भी इनकम्प्लीट हो गया, है ना? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के बारे में, इफ यू पीपल से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इफ यू पीपल से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू से दैट स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग विथ डी? How many of you are going with D? Let me see students. How many of you are going with D? Raise your hand, raise your hand, raise your hand. Okay, Ankush Vishwakarma. Who else? Sohail is going with D. Keep your hand raised students. Keep your hand raised. कौन कौन D ऑप्शन के साथ जा रहा है? अगर आपका आंसर D है, अगर आपका आंसर D है, so raise your hand students. Yes, very good. Very good. क्या बात है? अंकुश, मरविन, नितिन, सोहेल, all of them have replied for D. All these students have replied for D and answer is wrong. D is wrong answer students. Why is that so? Why is that so? क्यों wrong है सर? अगर आप शॉक्ड हो गए सर ये wrong नहीं हो सकता, मैंने टेक्स्ट बुक में देखा है, ये कंफर्म wrong नहीं है, ये right है, तो आपका मिस्टेक देखो यहाँ हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे बोर्ड्स वाले आपके साथ खेल सकते हैं, जैसे मैंने इस ऑप्शन में आपके साथ खेला है थोड़ा सा। क्या किया मैंने? आपको जानबूझ के
जानबूझ के मैंने लाइन से ये सारी चीजें दे दी जो आपको मेमोरी बेसिस पे आपको याद होंगी कि हाँ CO2 तो दिखता था मुझे, वाटर भी याद है, लाइट भी याद है, एनर्जी भी याद है। और आपने मिस्टेक कहाँ किया स्टूडेंट्स? नंबर में 3CO2 नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स? इथेनॉल हैज ओनली 2 कार्बन्स, है ना। और आपको ऑप्शंस में चेक करो स्टूडेंट्स, मैंने CO2 कितना CO2 दिया है? आई गिवन यू 3CO2, दैट मीन्स 3 कार्बन दिए मैंने। ये तो गलत बात हो गई। अगर रिएक्टेंट में ही 2 कार्बन है तो यहां से 3 कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता, है ना। सो इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनता है? ये वाला। जहां मैंने बैलेंसिंग तो नहीं किया है, कंफर्म बात है, बैलेंसिंग नहीं किया है, बट मैंने इंफॉर्मेशन करेक्ट दिया है। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू करेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हमेशा याद रखो, एमसीक्यूज में ये बात ध्यान देनी है, योर आंसर्स नीड नॉट बी परफेक्ट, एग्जैक्ट आंसर ना हो, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इज दैट अंडरस्टूड? नितिन, नितिन, मरविन, सोहेल, समझ में आया मिस्टेक? इफ यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स, लेट मी सी। इफ यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक, रेज योर हैंड। वेरी गुड नितिन, शाबाश शाबाश। चलो नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्रोपेन इज अ कंपोनेंट ऑफ डैश। प्रोपेन इज अ कंपोनेंट ऑफ डैश, मतलब इनमें से किस में प्रोपेन पाया जाता है स्टूडेंट्स? इनमें से किस चीज में प्रोपेन पाया जाता है? लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग द सेशन। फटाक से स्टूडेंट्स, वंस दिस सेशन एंड्स, आपको वापस सेम लिंक एंड पासवर्ड से मुझे ज्वाइन करना है अभी, ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे ये सेशन खत्म होगा, आप सेम लिंक एंड पासवर्ड से मुझे ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है? सेम लिंक एंड पासवर्ड से आपको ज्वाइन करना है। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सिंपल सा आंसर है। मैंने ऑप्शंस जानबूझ के यहाँ वहां आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम श्योर मेजोरिटी 99% ऑफ यू वुड हैव गॉट दिस करेक्ट। आंसर इज, आंसर इज ए, आंसर इज ए। एलपीजी, आईपीजी, यूपीजी, एसपीजी ऐसा कुछ भी नहीं होता, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया है, जो बोर्ड वाले भी दे सकते हैं। ऑप्शन